तो फिर एक न्यू क्लास में आए हैं और इसमें अगेन हम लोग एक माइक्रो क्लास ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। माइक्रो क्लास में हमारे कुछ फ्यूचरिस्टिक साइंटिस्ट कह सकते हैं आप, कुछ बच्चे हैं जो आएंगे और आपके सामने किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे, और कुछ आपके रिगार्डेड कुछ बच्चे हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, वो आपसे कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे, यू हैव टू एक्सप्लेन। सो शुरुआत करते हैं चंचल से। चंचल, नाउ स्टार्ट योर टॉपिक। माइक ऑफ। चंचल आवाज नहीं है। चलो। गुड आफ्टरनून एवरी। और फोन को थोड़ा सही रख लीजिए, फोन को बेटा सही रख लीजिए। आपकी वीडियो थोड़ा सा लैंडस्केप मोड पे आ रही है स्क्रीन पे। कोई हेल्प ले लिया करिए आप लोग, हमेशा किसी एक पर्सन की हेल्प ले लिया करिए आप लोग वीडियो हैंडलिंग मतलब मोबाइल हैंडलिंग के लिए, ठीक है? मोबाइल हैंडलिंग के लिए किसी की हेल्प ले लीजिए। अभी भी आपका बेटा कैमरा लैंडस्केप मोड में आ रहा है बेटा। सही। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, दैट्स बेटर। बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन किया है बेटा आप लोगों ने, आपने बहुत अच्छा फिगर आउट किया है। वाटर साइकिल बहुत देर नहीं। नाउ स्टार्ट। फिर कैमरा आपका ऑफ हो गया। हाँ, वेरी गुड। And good afternoon to my honorable teacher Salman sir. I am Chanchal Yadav from class 9. I am here to represent my topic is water cycle. First I tell about the water. The planet where we live is called the earth, means the planet where the life exists is called the earth. Earth is also known as the blue planet. Why is earth known as blue planet? Because there is 75% of the earth's surface is covered with water. The resources in forms are ocean, sea, river, ponds, etc. are there. And there is 97.5% of water which is marine water, means sea water, that is not unable for drinking and any other things. And there is 2.5% of water which is fresh water, means which is used for drinking and cleaning clothing and doing other works. And the water is a raw material of is used in plants in the form of synthesis, and water is important for plants to prepare their food and both plants and animals, and they forms the metabolic activities. And the rain is the source of important source of underground water. And the let us start the how to rain forms and the how to cloud forms. Let us start the water cycle. What is water cycle? Water cycle is the journey of water and means continuous journey of water in the form of starts of oceans, sea, river, lake, etc. to the sea. It means to the sky in the form of the finally back to the sea. This process is called the water cycle. I show you some images and how to water cycle process. So let us see the process of water cycle. First, I take a source of water, means this is a river, and this all source of water is combined into the oceans. When the sun rises and the sun rays is directly into the oceans, sun rays is directly forms into the oceans, and ocean water becomes so heat, and this evaporates, means it evaporates into water vapor. So this process is called the evaporation. Evaporation means the liquid, means water, is directly changed into gas. And after evaporations, a condensation process is held. Let us start how. But these water vapors is changed into small droplets and meeting up cool air and forms up clouds. This process is called the condensations. Condensations means the gas is directly changed into a liquid. This process is called condensation, and after the condensation, transpiration process is also held there. And the transpiration process means there it is the process to water movements from the earth's surface
It forms in plants to their leaves, stems, and flowers also. And after this process, on cooling, the water holds, the mist cloud holds a water, and they become a heavier. So they become heavier, and they forms in the rain and means snowfalls, drizzles, hail, etc. They forms. So this process is called precipitations. After the precipitations, the rain coming on the earth surface, and this process is continuously held. Means water is continuous process of evaporations, condensations, and transpirations and precipitations. This process is not never been stopped, and this is continuously started and started to save water and save life. And thank you. Sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था आपका, वेरी गुड। नाउ मैं आपके साथ कुछ लोगों को शेयर कर रहा हूँ, वो लोग आपके पास कुछ क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है? और आपको वीडियो ऑन सारे लोग कर ले बेटा, जितने बच्चे हैं सारे लोग वीडियो ऑन कर ले, ठीक है? सारे बच्चे वीडियो ऑन कर ले, जितने लोगों को मैंने जोड़ा हुआ है, ठीक है? चलिए, नाउ मयंक, नाउ यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन। मयंक। नो सर, मुझे नहीं करना है। ठीक है, प्रेमदा। प्रेमदा, you can ask the question. सर एक Yes. मानसी, मानसी आप भी पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं कुछ क्वेश्चंस वाटर साइकिल में। यस सर। हाँ, आस्क द क्वेश्चन। चंचल प्लीज वो डायग्राम फिर से दिखा सकती? हाँ, एक मिनट। देखा मानसी? हाँ, एक मिनट ऐसे ही रखना। हाँ। तुम प्लीज एक बार प्रेसिपिटेशन एक्सप्लेन करो। ओके। प्रेसिपिटेशन एक प्रोसेस होती है। इट इज द प्रोसेस which water from atmosphere fall back in liquid and frozen forms. Liquid and frozen form means जो रेन होती है तो मतलब रेन के फॉर्म में आती है, स्नोफॉल के जब वाटर कंडेंसेशन प्रोसेस के बाद जब जो वाटर कूल्स एयर जाती जब जो क्लाउड्स हैं वो हैवी हो जाते तो मतलब जो कंट्रोल मतलब जो रेन होती है उनमें वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो फ्रोजन के या लिक्विड फॉर्म में वो अर्थ पर मतलब गिरते हैं रेनिंग फॉर्म में या स्नोफॉल में ऐसे डिजीज तो ये प्रोसेस होती है। So Mansi, are you satisfied with the answer? Mansi, are you satisfied with the answer? Almost. Okay. Sir, I have one question. Okay, beta. Yeah, Premvada. Now ask. तो चंचल, what is the sublimation in the water cycle? Sublimation क्या होता है? Yes. क्या प्रियमिता? सब्लिमेशन बेटा, सब्लिमेशन आपको बताना है। प्रेमदा का क्वेश्चन था सब्लिमेशन एक्सप्लेन कीजिए। व्हाट इज सब्लिमेशन इन दिस प्रोसेस? तो इन दिस प्रोसेस सब्लिमेशन तो कुछ नहीं बट सब्लिमेशन एक प्रोसेस होती है लाइक द सब्लिमेशन इज लिक्विड वो सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर लाइक कैम्फर। व्हेन वी कैम्फर जब कैम्फर को जलाते हैं तो वो लिक्विड सॉलिड फॉर्म में होता है दैट उसके बाद वो डायरेक्टली चेंज होता है गैस में
into vapor. So this process is called the sublimation. In here to यस बेटा अपना माइक बोल रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा सही कर लीजिए, लैंडस्केप मोड में आ रहा है चंचल। हाँ जैसे आप पहले कर रहे थे आप, ठीक है थोड़ा सा वॉइस, हाँ अब ठीक है। यस प्रियंवदा, आर यू सेटिस्फाइड विद द आंसर? Yes, sir. Very good explanation, Chanchal. वेरी गुड। नेक्स्ट कौन एक्सप्लेन Sir, करेगा बेटा? नेक्स्ट, थैंक यू बेटा, वेरी गुड सारे बच्चों का जिन्होंने एक्सप्लेन किया। और बेटा आपने बहुत अच्छा एफर्ट डाला और आपने जो चार्ट पेपर बनाया वो भी बहुत अच्छा बनाया, वेरी गुड बेटा। इसको हाँ नेक्स्ट, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसी तरह बेटा हम लोग चाहते हैं कि आपकी एफर्ट बाहर आए और आपको लगा, फील होगा कि जब आप कोई चीज समझाने के लिए आते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती, भले ही आप वहां पर जाकर के बोले या ना। इज दैट क्लियर? सो और बच्चे भी आपको चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जहां पर आप फंस जाए, ठीक है? कोई बात नहीं, आपने अच्छे से आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट। सर वो मुझे आपसे ये पूछना था कि ये जो प्रोसेस थी वाटर साइकिल की, इसमें सब्लिमेशन कहाँ था? अच्छा, सब्लिमेशन किसने क्वेश्चन पूछा था बेटा? प्रियंवदा ने पूछा था सर। प्रियंवदा, चलिए एक्सप्लेन कीजिए सब्लिमेशन कहाँ है, आपने क्वेश्चन पूछा था। सर सब्लिमेशन वो है सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चेंज होना, वो सब्लिमेशन होता है। हाँ लेकिन वाटर साइकिल में सब्लिमेशन कहाँ है? उसने जर्नली क्वेश्चन पूछा था, शायद नहीं है। अच्छा, जनरल क्वेश्चन था, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, इसलिए मैंने आपको छोड़ दिया है सारे बच्चों को, आप अपने हिसाब से क्लास मेंटेन कीजिए। आज आप लोग हैं टीचर्स इस क्लास में। चलिए नेक्स्ट कौन आना चाहेगा बेटा एक्सप्लेन करने के लिए? सर मैं क्या था? चलिए मैं क्या था, मैं आपको स्पॉटलाइट पे रखता हूँ, आइए। नाउ इट्स योर टर्न बेटा। इसी को हेल्प ले लिया करिए हमेशा, जब भी आप वीडियो समझाने की कोशिश करें किसी भी एक पर्सन की हेल्प जरूर लें जो आपके कैमरे को हैंडल कर सके अच्छे से, ठीक है? बिकॉज व्यू आपके थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक, कैल्शियम, यस ठीक है बेटा, पहला सही था आपका, बस बस दैट्स बेटर। वन मिनट। ओके नो प्रॉब्लम बेटा। हम लोग बात कर रहे थे जैसे कुछ बच्चे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं चीजों को, कुछ ये भी आप लोगों को बेटा परेशान मत, मैं इस वीडियो को तो आज के आज डाल दूंगा, आज आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हैं इस वीडियो को। और कोशिश कीजिए कि ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर होना चाहिए जिन बच्चों को यहाँ पर स्पॉटलाइट मिल रही है। बेटा आप स्पॉटलाइट मिल रही है तो आप मैक्सिमम शेयर करेंगे तो आपको भी चीजें, आप भी शेयर होंगे, आप भी स्पॉटलाइट में आएंगे। एंड एवरीवन नोज दैट हाउ आर द पोटेंशियल दैट यू आर हैव। तो यहाँ जितने बच्चे हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे जितने भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, चाहे जो भी बच्चा हो यहाँ पर, सब अच्छी चीजों से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और आई नीड, और मुझे ये चाहिए कि जो बच्चे और भी हैं, अदर बच्चे भी हैं, वो भी अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करना सीखें, ठीक है? बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। हाँ तो आप लोग कोशिश की, थोड़ा सा टफ लग सकता है आपको चीजों बेटा, पहले सेटलमेंट सही था बेटा आपका कैमरा, अब थोड़ा सा लैंडस्केप मोड में आ रहा है। नो सर मयंक क्या एक्सप्लेन कर रहा है? मयंक बेटा आपको पहले कैमरे का सेटिंग सही थी, अभी डिस्टर्ब हो रहा है, जिससे लैंडस्केप मोड में सारी चीजें दिखाई दे। ऑटो रोटेट ऑन कर लीजिए बेटा अपने फोन का। यस हाँ अब सही है, अब सही है, अब सही है, अब सही है। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा आप समझाना शुरू कीजिए। यस सर। ठीक है। Good morning, everyone. My name is Mike and today I am explain carbon cycle. And I am standard 9. Let's start. When carbon present in atmosphere, when कार्बन एटमॉस्फेयर में होती है और उसके बाद जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स कार्बन को यूज करते हैं एटमॉस्फेयर से, वो भी अपने जो फूड बनाने के लिए, उनका फूड होता है ग्लूकोज बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस।
इन्होंने ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन में रिलीज किया, और ऑक्सीजन रिलीज करके एनिमल्स एंड ह्यूमंस ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे बाय प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ओके, एंड द नाइट में प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर से मिलकर कार्बोनेट बनाती है तो उसके बाद उससे लाइमस्टोन फॉर्म होते हैं। और जब प्लांट्स लाइक अर्थक्वेक आने की वजह से जो प्लांट्स या ट्रीज हैं जो अर्थ की क्रस्ट में दब जाते हैं, तो उनका वहां पे हाई प्रेशर होने की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और प्लांट एंड एनिमल दोनों जब अर्थ क्रस्ट में दब जाते हैं तो वहां पे पेट्रोलियम बनता है। पेट्रोलियम और कोल को जब हम हीट करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो वापस से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाती है। एंड जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो कार्बोनेट का यूज करके सेल्स बनाते हैं जो कि हमें समुद्र में मिलते हैं, लाइक उनके पत्थर टाइप्स में। और ये लोग बर्निंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। थैंक यू सर। यस सर। सर आप अनम्यूट हैं। सॉरी। आई मीन सर आप माइक म्यूट है। ओके, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन्विटेशन देना चाहता हूँ बच्चों को, जो कुछ बच्चे आए और उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो सबसे पहले क्वेश्चन कौन पूछेगा बेटा? यस, मानसी, कैन यू आस्क अ क्वेश्चन? सर एक्चुअली मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, कार्बन साइकिल पढ़ी है आपने? हाँ सर, मतलब आया समझ में, लेकिन इसने बहुत शॉर्ट में समझा दिया तो वो थोड़ा कोई सा। बात नहीं, आप उसे कोशिश करवाइए कि वो एलिब्रेट में समझाए। कोई टॉपिक दे दीजिए उसको, पूछिए कुछ क्वेश्चन तो आपको समझाएगा वो। सर हम एक क्वेश्चन पूछें? हाँ सर। बेटा, मैं कि ये बताइए कार्बन साइकिल जो है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या जरूरत है कार्बन साइकिल की? हाँ, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। जब कार्बन नहीं होगी तो प्लांट्स अपने लिए फूड नहीं बनाएंगे, और प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो जब प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे तो प्लांट नहीं होंगे अर्थ पे, और ऑक्सीजन भी नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम लोग भी अर्थ पे नहीं रह सकते। इसलिए कार्बन हमारे लिए जरूरी है, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली जरूरी है वो हम लोगों के लिए। अच्छा ठीक है, ये तो ठीक था। अब ये बताओ, ये कोल और पेट्रोलियम इनका कितना और क्या रोल है? कोल जब जो अर्थ क्यूब आता है अर्थ पे, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में दब जाते हैं नीचे, और वहां पे हाई प्रेशर होने की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं बहुत टाइम के बाद। और जो पेट्रोलियम होता है वो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के जो अर्थ क्रस्ट में दबने की वजह से बनते हैं, वो भी बहुत टाइम में। ये नहीं कि वो बहुत लंबी प्रोसेस होती है, शॉर्ट प्रोसेस नहीं होती कि दबे और हाल पेट्रोलियम बन जाए। इसलिए उसमें बहुत टाइम लगता है उसको पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने के लिए। और पेट्रोलियम और कोल को जब हम बर्न करते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जो वापस से एटमॉस्फेयर में आ जाती है। मेरा क्वेश्चन ये था कि इनका रोल क्या है, इनका हम क्या करें? अब वो कितने भी सालों में बने, हमें क्या उससे? और इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके हम क्या करेंगे? मतलब इन्हें जला के हमें क्या करना? इनको दबा रहने दो अगर दबे हैं तो हमारे यूज में भी तो आते हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी तो हमें चाहिए। ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं रहेगी। जैसे तुमने बताया अभी कि प्लांट्स जब कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते तो ऑक्सीजन रिलीज करते, वैसे ह्यूमंस भी तो इतने सारे हैं, जब वो ऑक्सीजन इनहेल करते तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते। वैसे भी तो ये मेंटेन हो सकती साइकिल, फिर ये पेट्रोलियम और कोल की क्या जरूरत है? वो जब अर्थ क्रस्ट में निकलते हैं तो हम लोग पेट्रोलियम तो वैसे भी हम लोग को यूज करना पड़ता है, लाइक जो गाड़ी आड़ी के लिए, तो उससे जो गैस निकलती है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड आती है। जो अर्थ क्रस्ट में जो एनिमल्स जा रहे हैं तो उधर से तो ऑलरेडी हमें कार्बन निकलेगी ना। जब पेट्रोलियम बनेगा तो हम लोग पेट्रोलियम को यूज करते हैं।
उसको हम गाड़ियों के लिए भी यूज करते हैं और कोल को जलाने के लिए, कहीं पे खाना आना पकाने के लिए भी यूज करते हैं। तो इस में क्या कोल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर में भी यूज होता है। हाँ। वॉइस इज नॉट क्लियर बेटा। ओके सो क्लास आई थिंक आप लोगों ने अपना रोल बहुत अच्छे से प्ले किया और जितने भी बच्चे थे वो सारे बच्चे जिन्होंने एक्सप्लेन किया, मैं बहुत थैंकफुल हूँ बेटा आप लोगों का एंड आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने क्वेश्चन पूछे और जिन्होंने क्वेश्चंस के आंसर दिए। तो एक नया इनिशिएटिव है ये हमारा कि हम कुछ चीजें नया करना चाहते हैं, नया रिप्रेजेंट करना चाहते हैं और बच्चे उस चीज में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ये देखते थे कि टीचर टीचर है और स्टूडेंट स्टूडेंट है, लेकिन हमने कोशिश की है कि स्टूडेंट को टीचर बनाने की। इससे ये पॉसिबिलिटी आएगी कि आपके अंदर एक इंसाइटनेस क्रिएट होगी एंड दैट इंसाइटनेस एज वेल एज अ टीचर, so you will better understand how teacher works and what is the टफ वर्क फॉर द टीचर। कि एक छोटे से टॉपिक को लिए आपको समझाने के लिए कितना फर्क पड़ना पड़ा कि बहुत सारे बच्चे आपसे पूछेंगे, कुछ ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। तो जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए इस एक्टिविटी में, वेरी गुड बेटा। ये सेकंड पार्ट था आपका। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलेंगे। फिर कुछ बच्चे जो छूट गए हैं उनके बच्चों की फिर कुछ पार्ट्स आपको पढ़ेंगे और प्रिपेयर रहिए अपने लिए ताकि आप दूसरों से क्वेश्चन पूछ सकें। वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चों के बिना ये कुछ नहीं हो सकता था पॉसिबल। आप लोगों ने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किया बेटा। यू आर द एक्सट्रीमली आउटस्टैंडिंग। तो कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू बेटा। फ्रॉम माय साइड, मेरी तरफ से आपको बहुत अच्छा, बहुत क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, शुभकामनाएं। ठीक है, सो वी विल मीट इन अनदर क्लास, अनदर टॉपिक, अनदर स्टूडेंट्स। लेट्स wait for the next class. Okay, now